everybody, this is me Amar Jaju once again on India Fights Addiction, which is an initiative by Nation Next Foundation to create awareness in the society about addiction. Today we have with us once again Mr. Vivek Daga. Now we have spoken to him about how alcohol changed his life, what was his moment of realization, when did he quit alcohol, and also about the state of rehabilitation centers in our country. Today, we are going to talk about another important topic, that what is the role of an addict in quitting alcohol and what is his basic responsibility. Once again, Vivek, welcome to India Fights Addiction. Hi Amar. Uh, Amar, the issue is that an addict who has been using substances or alcohol for a very long time has lost his brain. The normal function of a brain has stopped. However much the society understands, however much I can speak about that you don't understand me, however much I may say that my parents are not understanding me or my loved ones are not understanding me, I can make them understand. They will understand. But at the end of the day, the buck stops at you. It's your goddamn life. How you want to resolve it is within your domain. We can remove the taboo from the society. We can make efforts to bring government regulation. We can make people aware. We can make 101 changes in the surrounding relating to addiction. But at the end of the day, you have to take the charge of your own life. There are many methods by which you will be given support. You can avail of help. Do you really want to? That is where the buck stops. हम जब मैं एडिक्ट था, मैं नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत ही नहीं, मुझे डिसिप्लिन होना ही नहीं, मुझे वो हाई चाहिए. लाइफ इज नॉट अबाउट हाई, लाइफ इज अबाउट बैलेंस. Are you ready to lead a balanced life? Do you want to? That is where the client responsibility, which I am talking about, or the addict's responsibility comes. I have taken up the responsibility of making myself okay, and I have not done it for anybody. This is the root of the problem. ये एक vicious circle बन गया है कि the parents don't understand and the client is using that as an excuse to keep on indulging. That is not correct. There's only one thing that is constant, Amar, in life, and that is change. And there is only one person in the world you can change. That is yourself. You cannot change everyone. आप कोशिश कर लो. आप मेरे लिए चेंज होने वाले हो? नहीं होने वाले. क्यों होगे? What is easier, to change somebody else or to change myself? So whenever I do indulge in a conversation with a client, this is the first question I ask him: do you want to change for the better? That is why last time I said it has to be voluntary. If there is a desire, that is all I need to get you okay. Do you have the desire to lead a balanced life? Unfortunately, our society has created a total imbalance in life. हमारी इंडियन सभ्यता में कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जब तक के इन्फ्लुएंस नहीं था, वी हैड अ बैलेंस्ड लाइफ. नाउ वी हैव इवॉल्व्ड एंड चोजन टू लीड अ multicultural life. So you have to also understand that the problems that come with it need to be addressed. Party life is not our life. Drinking life is not our life. It is not in our culture. तो हम जब वो कल्चर को अपना रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम्स को भी हमें समझना चाहिए. एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली, एक नॉर्मल यूरोपियन फैमिली या कोई भी एडवांस नेशन डेवलप कंट्री की जो फैमिली है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने ड्रिंकिंग के लिए. वन ड्रिंक अ डे मीन्स वन ड्रिंक अ डे. The minute you have gone out of balance because of some other influences or influences of some other culture,
You must understand to restore your normal life back to our way of living. I am not living in Miami and I am not partying in Miami 365 days. गोवा 3 दिन के लिए अच्छा है. It's great fun. That's a break away from normal life. You come back to normal life. Hundreds and thousands of families go to Goa for a break. My brother goes. He does not indulge in partying and all that. He goes for relaxing. He's a very simple person. I go to Goa, I enjoy party, I come back home, I'm back to my work. The unfortunate part is I want to party every day. That is the problem. That is where the whole genesis of the situation. And this is highly prevalent in teenagers today. This is my worry. So it is my appeal to the coming generation that do not leave the balance of our roots. Never forget your roots. That is the responsibility of an addict. आपके roots क्या हैं? पहली चीज, you are a human being. You are not a robotic artificial intelligence. कि आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है. आपकी बॉडी जाने वाली है, आपका माइंड जाने वाला है, आपका रेपुटेशन जाने वाला है, आपके पैसे जाने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप्स खत्म होने वाले हैं. फिर भी आप कितना देर तक के वो रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे? टूटेगा. द प्रोग्राम इज सिंपल. डू यू वांट टू फॉलो इट? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. आई हैव अ क्लाइंट प्रेजेंटली. मैंने उनकी पूरी फैमिली को बुलाया मेडिटेशन. नन ऑफ देम डू इट रिलीजियसली. To the extent that sometimes I feel I've become a nag about meditation. अरे and you're just trying to help them. मतलब like help me. See, meditation से हमें क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या सोल्यूशन है? ये बड़ी एब्सर्ड बातें कर रहे हैं आप. मुझे कोई गोली दे दो. We are addicted to a quick fix. There is no quick fix in life. कोई भी आप काम कर लो, चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप रिलेशनशिप ले लो, रोज एक प्लांट को पानी देना पड़ता है. एक साथ आप 50 बकेट पानी नहीं डालते, वो प्लांट सड़ जाएगा. और रोज पानी नहीं दोगे तो भी खराब हो जाएगा. तो नेचर हैज टोल्ड अस दैट कि यू हैव टू वर्क थ्रू इट डेली, स्लोली, डेली. इट्स अ डेली स्ट्रगल फॉर मी इवन टुडे. Even today, after being sober for such a long time, gone through the program, I have 4 years, I have done 365 days, 4 hours meditation. जब मैं आश्रम में गया था 1 महीना के लिए, तो मैं 7 घंटा रोज मेडिटेशन किया. फिर भी आज मेरे लिए एक स्ट्रगल है. मैं सुबह जब उठता हूँ, आजकल देरी से उठ रहा हूँ, पहले जब जल्दी उठता था तो मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करता था कि मैं मेडिटेशन करूँ. What does meditation do? It gives you balance. हम अकेले पैदा हुए, अकेले ही मरने वाले. ये सारे साथ, ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, सारे टेम्पररी. कौन परमानेंट है आपकी लाइफ में? You are the only one who is permanent in your life. तो ये है एक एडिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट कि वेलकम टू अडल्टहुड. यू आर नो मोर अ चाइल्ड. यू डोंट नीड टू बी नर्स्ड. यू डोंट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. एवरीबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सन और द हस्बैंड, whosoever is the co-dependent, also has to take care of himself. This, me as an addict, I have to understand. I can't go everything to my dad for everything. अरे उनकी खुद की जो समस्याएं वो कौन सुलझाएगा? जब तक कि मैं एक एडिक्टेड फेज में था या मैं सब्सटेंस अब्यूज के अंदर ग्रिप में था, तब तक कि he was there to help me. Once I have come to know that कि I am in shit, you need to get out of it. What can my father do?
He understands me. He understands the power of alcohol and addiction. He has changed. Have I changed? अब ये तो it is the same story, the chicken came or the egg. कौन पहले आया? मैं क्यों वेट करूँ सोसाइटी को और फैमिली को चेंज होने के लिए? बट मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम लोग आपने कहा कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिक्ट टू चेंज. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन दैट, ऑफ कोर्स इट इज़ एडिक्शन, बिगेस्ट चैलेंज इज दैट फैमिली चाहती है कि वो चेंज हो जाए. डू यू थिंक दैट डिनायल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉट making him understand that? Denial is the first step. If you are in denial, there is no rehabilitation. Denial तो हमारे मुझे alcoholics का एडिक्शन है ही नहीं. हाँ. नहीं, वो denial नहीं है. बहुत सारे denials हैं. Denial हर चीज का है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स किसी और के कारण है. इसको हम blame game बोलते हैं. ये blame game बंद करो. The minute you have become 21 and you are in adulthood, there is no blame game. There is no blame game. Yes, teenagers, I can still say that their mind is fragile. They need help. They need the cover. My whole program and agenda is today, what we are doing is largely I want to address the various strata of the society and the various age groups also. हमें टेलर मेड प्रोग्राम देना है हर एक एडिक्ट के लिए. टेलर मेड प्रोग्राम. सी द बेसिक प्रोग्राम इज सेम, बट माय एजेंडा इज टू ब्रिंग आउट द रिसोर्सेज which you have within you, to use those resources to your benefits and not to your detrimental side. अगर आज मेरे पास घर है, मेरे पास छत है, मेरे पास खाने के लिए है, तो मैं वो रिसोर्सेज को अब्यूज कर रहा हूँ कि यूज कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. आज अगर मैं एज एन एडिक्ट ये समझ गया हूँ कि मैंने अभी तक अब्यूज किया तो अब बंद करूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं जिंदा रहूँ ताकि मैं किसी के काम आ सकूँ. चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ भिखारी हो, चाहे वो मेरे फादर हो, चाहे वो मेरी डॉटर हो, चाहे आप हो. If I can contribute something to the society, my existence is worth it. Otherwise, I'm just another person living on this planet with 8 billion people. तो ठीक है, रहो पड़े, जिंदा हो, ठीक. देखिए, बर्थ एंड डेथ तो किसी के हाथ में नहीं. तो जब तक के सांसें लिखी हैं तब तक के लिए खुद के लिए कुछ कर ले भाई. सिंपल. मत कर, दुनिया के लिए मत कर. मैं अगर आज कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और उसी में मेरा क्योर है, उसी में मेरे एडिक्शन का क्योर है. मैं देखिए, सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड इट. इट्स अ प्रॉब्लम. It's a problem. Parents don't understand it, it's a problem. Spouses don't understand it, brothers sisters don't understand it, it's a problem. वो चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व होती हैं. कोई रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. अरे मैं कुछ दिन तो सोबर रहूं, मैं उनको भी सांस लेने के लिए जगह दूं कि नहीं दूं. They are also traumatized. You have scared them. आपने उन पे मेंटल टॉर्चर डाला है, आपने उनको तोड़ दिया अंदर से, टूट गए हैं. उस टूटे हुए इंसान से आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली भी हैंडल करे, आपके खाना पीना भी देखे, आपके इमोशनल साइड को भी देखे, आपको सोसाइटी में वापस से रीस्टेबलाइज करने के लिए भी कोशिश करे, और फिर आप उन्हीं को ब्लेम करो. दैट इज अनफेयर. Why? You have to be absolutely rigid towards the program. I do not step away from my discipline. मैं एक दिन हट जाऊँ प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये मेरे को किसी रिहैब सेंटर ने
या किसी काउंसलर ने नहीं बताया, ना ही किताबों ने बताया। ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन कि मतलब मैं लूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं लूँ, ये सबसे बड़ी है। हम बात कर रहे थे, बहुत बहुत लोगों के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एडिक्टेड हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू अ वेरी हॉरेबल टाइम। 13 साल का बच्चा है, मेरी डॉटर 13 साल की, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा उससे? ये कब आएगा रियलाइजेशन? मेरे फादर 75+ है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उनसे? 50 साल से तो वो फैक्ट्री जा कर के मेरे लिए वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं, मैं उसको मिसयूज़ कर रहा हूँ, और फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं एडिक्टेड हूँ, मैं डिजीज़ में हूँ। करेक्ट? अरे आपको डायबिटीज़ है, डिजीज़ है, आप इंसुलिन नहीं लोगे, फिर आप बोलोगे कि मेरे को प्रॉब्लम है। या अगर आप मीठा खाओगे, मैं समझा दूंगा दुनिया को कि भैया इसको प्रॉब्लम है, इसको मीठे की क्रेविंग होती है, कुछ नहीं कर सकते। बट एक डायबिटिक पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना कि वो टाइम पे दवाई ले, पौष्टिक खाना खाए, प्रॉपर रहे, एक्सरसाइज करे। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डायबिटीज, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। डायबिटिक पर्सन गोज थ्रू हेल। आप एज एन एडिक्ट, मैं दुनिया को समझा दूंगा कि भैया इट्स अ डिजीज, लेकिन फिर ट्रीटमेंट भी तो लेना पड़ेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं कल सुबह दवाई नहीं खाऊंगा, तो मतलब कैसे बोलूँ, मतलब यू आर अ डोंकी, गधे हो तुम। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि योर फादर हेल्प्ड यू अ लॉट ओवर द इयर्स एंड योर डॉटर सपोर्टेड यू एज वेल ओवर द इयर्स। या तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके आपकी कई बार रिलैप्सेस हुए, आई एम श्योर एक आपको एक ऐसा भी, जैसे आपने एक दिन कहा था कि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपके फादर यहाँ बैठे हैं तो आपने सोचा कि क्यों बैठे हैं यहाँ पे, तो एक एग्रेशन भी है। लेकिन क्या आप ये नहीं कहेंगे कि एक एडिक्ट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनकी कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उस मदद को समझने की कोशिश करे? see, till the time the substance is there in your system, that understanding does not develop. That is why we go to a rehab center, so that we give our body and mind enough amount of break, so that it restores to some kind of normalcy. उसके बाद में एक एडिक्ट को चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन जो आप रिलैप्सेस का बोल रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलैप्स इज पार्ट ऑफ एडिक्शन। रिलैप्सेस होते हैं, रिलैप्सेस होते हैं, मेरे 100 रिलैप्सेस हुए। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर का रोल उसमें ये था, ही हैड अंडरस्टूड, तो ही यूज्ड टू से नो प्रॉब्लम, you still want to stay on your path? I said, yes, Dad. He said, you come and stay with me, stay in my room, and one day alcohol will move out, go back to the program. And I have done it 5-7 times. 5-7 times I have done it. So there is nothing to be scared about relapses. There is nothing for the family to be scared about it. And also there's a very important thing that I see in addicts, be who are trying to quit. एक किसी चीज़ से बाहर निकलना, किसी एडिक्शन से बाहर निकलना एक एडिक्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट आई गेस, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन, लाइक वी हैव कवर्ड इन द एपिसोड। व्हेन देयर इज़ अ रिलैप्स एंड एडिक्ट is, he is bound to feel a certain kind of shame. He feels that in himself. So would you like to say something about that? Because I'll tell you what the beautiful part is, कि मैंने अपने हर रिलैप्स में एक नई चीज़ सीखी। Because of my meditative practice, I look for opportunity in adversity. हर एडवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी लाती है। मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को समझने के लिए। ये मेरा माइंड इतना खुल गया है कि मेरे को हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप इनिशियल स्टेजेस की बात करोगे तो मेरे को बहुत फीलिंग होती थी कि यार मेरे से नहीं होगा, रिलैप्सेस हुआ, गिल्ट हुआ, ये सब हुआ, बट मेडिटेशन करते करते वो गिल्ट चले गए। I realized it that guilt is another trap. It is another trap. So, like I have said it earlier in one of the episodes, guilt नहीं है. I'm more responsible.
गिल्ट अब नहीं है मेरे को। मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि कल मैं शराब पीऊँगा कि नहीं पीऊँगा। टुमारो इज़ अनदर डे, टुडे आई एम नॉट ड्रिंकिंग। Tomorrow morning I will get up and say the same thing, that today God keep me away from my first drink. This is a motto which we follow. It is a daily struggle. It अब is ये है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिक्ट यू आर स्पीकिंग अबाउट कि उसको अपने साथ क्या करना है, क्या समझना है, उसको कितना स्ट्रेंथ अपने में रखना है। मेडिट अब मुझे बताइए कि उसमें मेडिटेशन का रोल आपने थोड़ा बताया हमें, पर उसमें हाउ डज मेडिटेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज मेडिटेशन व्हेन इट कम्स टू व्हेन यू क्विट सम सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल? ध्यान हमारी सभ्यता में करोड़ों साल से, from 6,000 years since what I understand our हिंदू सभ्यता जो चली आ रही है, उसमें ध्यान 6,000 सालों से है। What is meditation? एक तो there is no particular specific technique. Whether you do any format of meditation, whether it is Shri Ravi Shankar, Sadhguru, Osho, गोयंका जी, अपना इगतपुरी, या आप जो भी प्रक्रिया, बाबा रामदेव जी, जो भी प्रक्रिया फॉलो करना चाहो, दैट इज इस्कॉन, दैट इज योर विच व्हाट यू गेट इन्वॉल्व विद। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज साइलेंस। प्योर मेडिटेशन इज टू रीच साइलेंस। आपको भगवान ने आँख दी है, कान दिए, आँख आप बंद कर सकते हो, कान बंद नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दिस इज नेचर। सी, मेरे दिमाग में एट वन पॉइंट 1000 थॉट्स आते हैं, सबके आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। व्हाट हैपेंस इज कि my actions are based on my thoughts. It's very simple. If my thoughts are simple, my actions will be simple. If I have got complicated thoughts, my actions will be complicated. Meditation is the purest form of energy which can restore your balance. एक ज़माने में साल के 10 पेपर लिखे जाते थे, आजकल 10,000 पेपर लिखे जा रहे हैं मेडिटेशन पे। ब्रह्म कुमारी हैं, आप शिवानी जी की बात कर लें, या आप सदगुरु की, या ओशो की। मेडिटेशन इट इज़ मदर्स मिल्क। जैसे एक बेबी को माँ का दूध चाहिए उसको इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए उसका, वैसे ही हमारे माइंड का इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए मेडिटेशन इज नेसेसरी। यू शुड begin meditating from the age of 3. आज की जितनी नई पीढ़ी आ रही है, मैं बोल रहा हूँ अपने बच्चों को 3 साल से मेडिटेशन कराओ। हाई चिल्ड्रन हैव गॉट हाई एनर्जी, दैट हाई एनर्जी नीड्स टू बी चैनलाइज्ड। व्हाट डज मेडिटेशन डू? इट चैनलाइजेज योर एनर्जी। एवरीबडी इज मेड ऑफ एनर्जी। हमारे में है क्या? हमारी बॉडी क्या है? इट्स अ बॉल ऑफ एनर्जी। Science has proven it. You want to call it Atma, you want to call it the spirit, you want to call it whatever you feel like it. Meditation is God sent. मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, मैं किसी ऑफिसर से मिलने जा रहा हूँ, वेटिंग के लिए अपॉइंटमेंट है, ईयरफोन्स लगाया, मेडिटेशन। गाड़ी में ड्राइव पे जा रहा हूँ, पीछे से ओम चल रहा है। नहाते वक्त मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, आंख बंद करके बैकग्राउंड में मेडिटेशन चालू। एयरपोर्ट लाउंजेस पे, रेलवे स्टेशन पे हम हजारों जगह वेट करते हैं। लोग बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट। क्या आप ऐसा क्या बिजी हैं भैया? आपके पास में 10 मिनट टाइम नहीं है दिन में? यू टेक 10 minutes out of your life. You can do meditation while you are in office. You can do meditation while you are going for an appointment. You can do meditation while you are traveling. You can do meditation while you are anywhere, any place. That meditation is available on YouTube. मैंने आपको उसका लिंक भेजा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप चालू कर दीजिए। आंख बंद करना है, एक ही उसकी कंडीशन है, आंख बंद होनी चाहिए, बस। That's all. It has helped me reduce my blood pressure medication.
It has reduced my anti-anxiety medications. It has reduced my antidepressant medications. It has made me much more focused. आप मुझे कहीं छोड़ दीजिए, आई एम हैप्पी. आप मुझे जंगल में छोड़ दीजिए, हिमालयस में छोड़ दीजिए, या मुझे आप किसी बिजिएस्ट स्ट्रीट ऑफ इंडिया में अपन टांगा स्टैंड चलते हैं वहाँ छोड़ दीजिए, मैं वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर लूँगा. आप मेरे को बीच हब में ले जाइए, द नॉइजिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट. आई डोंट हियर द साउंड. मुझे नॉइज आती समझ में, आई डोंट फील इट. दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन. पावरफुल टूल, very powerful tool. And that certainly helps an See, addict. when the noise in your life has become so much overpowering, your thoughts will go towards the negative. Thoughts is an area which no science has also been able to understand. मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? अब आप उसको साइकेट्री में लेके चलो, पूरे हिस्ट्री निकालो, वो गो बैक कि बचपन में क्या हुआ था, फिर इसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, कैसा एनवायरनमेंट. दैट इज ऑल, इट्स ऑल अ साइकियाट्री गेम. आप उसकी साइकी पता करना, कुछ नहीं करना, ध्यान करो, Meditate. So back to, we drifted off a little bit into meditation, Kamal. Back to client responsibility. You are responsible for your own life. You need to figure out what has to be done. You want the society to stop abusing you, we are trying to achieve that. You want the family to understand you, we are trying to do that. You want medical help, it is available. You want rehabilitation, it is available. You want to restore yourself to normalcy, it is possible. What is your contribution? Are you contributing to yourself? Forget the society, forget your family, forget the world, forget your children, forget your mother, forget your whoever. Are you going to contribute something for yourself? कि आपको उस परमानेंट हाई में शांति है. दैट इज अ क्विक रोड टू इंसैनिटी एंड डेथ. दोनों में से एक चीज होके रहेगी, 100%. Science has proven it. Addiction leads to insanity and death at an accelerated growth. Accelerated growth. So your wish. Everything is in your hands. मुट्ठी में है आपके. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.